Shivansh, unmute your camera, please. Shivansh, unmute your camera, please. एक मिनट सर बस। क्या फेस वॉश? यस सर। ओके, क्या फेस वॉश करने गए थे क्या? नो सर, फीवर हुआ है मुझे। फीवर? यस सर, आज ही हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, टाइम इज स्टार्ट। टू 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बच्चों का। तो शिवांश, एवरीथिंग इज फाइन? यस सर। आई हैव एन क्वेश्चन फॉर यू। आई हैव एन क्वेश्चन फॉर यू, शिवांश। यस सर। Okay. यस सर। What are the methods? What are the methods of dictionary that helps us to access all the elements from dictionary? I repeat again. What is the method? Yeah, which method helps to access all the elements from dictionary? की और वैल्यू। Keys and values. Keys and values are the dictionary method in which keys method you use when you want to access all the keys simultaneously, and values method we use whenever you want to access all the values exist in dictionary simultaneously. These are the proper meaning of keys and value method. But my question is different. My question is, which method helps us to access all the elements from dictionary? All the elements from dictionary. I have already provided a complete PDF notes regarding dictionary and all the important and various methods available in dictionary and which can be applied on the dictionary. I have already discussed yesterday. Where is get method? You remember get methods, and the next one items method. Get methods and item methods both are dictionary method used to access all the items, all the elements from the dictionary. And another way to access all the elements from the dictionary, apart from these two methods, we can use simply a print statement. Okay, print statements and another way to accessing all the elements from the dictionary apart from print statements and get and items methods is traversing a dictionary. You can traverse a dictionary and access elements from the dictionary as per your given condition or given criteria. You should simply a for loop. I have already discussed more about for loop in list and string. How can traverse a list? How can traverse a string? For loop we use whenever you want to access all the elements, or some of the elements, a group of elements from the dictionary, list and string as per your given criteria. For example, suppose we want to access all the elements from the dictionary, and each element should be printed separate line. Each element should be printed in separate line. Whatever you want to do, using for loop. And another example, suppose you want to add a special symbol after each element, then you can use for loop. Whenever you use loop statement to access elements from the dictionary, list, string and other kind of data types, this process is simply called as traversing or iterating. Iterating means print or display the element whatever you want as per your given condition, as per your given criteria. That's clear? So these all the things I have discussed yesterday and day before yesterday lectures. So majorly Python programming concept and Python programming topic related to Python programming topics already have discussed completely. But today I am here to represent or explain the next unit or next chapter, cyber safety. This is your last chapter, this is your last session, or we can say last unit for your 11th computer science with Java session. Okay,
This is your last lecture. After completed this last lecture, even next 2 or 3 days, I will complete this chapter now. After that, we will doing more practice, more and more practice with the help of writing some programs. Raj recently joined this meeting. I think this is a first lecture for Raj. Raj, are you listening to me? Yes, sir. First lecture. First lecture. Yes, sir. This is not true, Raj. I am not expect such like you. आपसे तो मुझे ये expect नहीं था. Why? Any reason behind it? Raj? No, sir. No, such a good reason for that. For skipping the lectures. Okay. I know. So in the online classes, so there are so many common matter or reason behind it. Network issue or low battery discharges, whatever you want. But बाकी सभी लेक्चर आप लोग ले रहे थे, बट CS का लेक्चर आपने नहीं लिया. So you are a better और अच्छे स्टूडेंट. Okay, Raj. Don't be matter, but first of all, you complete your work. After that, you will be. I will expect you to continue next regular classes. Okay, regular classes for CS. Yes, sir. I will. Okay, because just 2 or 3 days. Okay, listen. Last just 2 or 3 days. I will revise all the previous lectures, or topics and some important programs by writing a programming method. अभी हमने कोई programs नहीं बनाए. Simply हमने अभी concept clear किए हैं. Okay, concept clear किए. But how can we implement all that concept to the programming? Okay, how can make a program completely application? How can write a completely application? How can create a student detail with the help of dictionary? How can create a list for student details, whatever, employee data means, library management, whatever. These are the some small. How can create a calculator? Just imagine after completing this lecture, we will discuss with you how can create own calculator. Is you amazing that you can able to make a own calculator application with Java? Raj? Yes, sir. Okay. Python, with the help of Python, and implement all the discussed concept of Python we have already discussed, and try to create our own calculator application. आप अपना कैलकुलेटर बना पाएंगे इसके बाद. ओके, चलिए. सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अभी जो रिवीजन के जितने भी लेक्चर होंगे वो आप कोई भी मिस ना करें. कुछ बच्चे जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि शिवांश है, प्रतीक्षा है, कनिका है, ये बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और राज आपसे भी. ओके, सो ट्राई टू बी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू कंटिन्यू नेक्स्ट कमिंग लेक्चर. ओके, नाउ I will start today's lecture. I have a presentation. For you. First of all, I will share my entire screen. And your presentation is, today's topic is cyber safety. Someone asked to join Haswa Khanam. Okay, Haswa, are you late today? Okay, let's begin. Cyber safety. Your last topic is cyber safety. Clear now? मैं इसको स्लाइड शो कर देते हैं फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, मोर क्लियर. ओके, साइबर सेफ्टी. व्हाट डू मीन बाय साइबर एंड व्हाट डू मीन बाय सेफ्टी? राज, कैन यू एक्सप्लेन बोथ द वर्ड सेपरेटली? Can you explain both the words cyber and safety separately? Cyber is a computer. Okay, I will try to explain. Nice, Raj, nice. Good enough. Nice answer. Next one. First of all, what is cyber safety? This is a technical definition for cyber safety. Technical definition of cyber safety. Cyber safety refers to the safe and responsible use of internet to ensure safety and security of personal information and not posing threat to anyone else's information. As you know very well, when we browse or serve any information over the internet, so it is many times possibility to access or trace your location and steal your information given to the any particular website, like your name, password, or your account details, something. This act happens when we try to be shop any goods or purchase any good buy online, and majorly these issues will occur whenever you transfer your money with the help of online method by your credit or debit card. तो इसलिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा. ओके, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा. व्हाट आर द सेफ्टी रूल? हाउ कैन सेफली ब्राउजिंग द वेब? अगर आप अपने वेब को सेफली ब्राउज करना नहीं जानते, पॉइंट आउट दिस नोट, तो दिस इज वेरी हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है. ओके, तो सेफली ब्राउजिंग करना सीखें. कैसे हम अपने ब्राउजिंग को सेफली यूज कर सकते हैं?
So we can safely browse the web by simply follow the some rules called netiquettes. Netiquettes are the important word. Netiquettes are the rules for secure browsing, rules for safe browsing. If you follow these netiquettes or some rules, we can say you use safe browsing. What are these netiquettes? What are these rules to implement during internet सर्विंग? ओके, नेक्स्ट वन, इनेबल डू नॉट ट्रैक इन योर ब्राउजर. एक बात आप समझ लीजिए, हम गूगल यूज करते हैं. एनीवन कैन यूज गूगल क्रोम? राज, हसबा, शिवांश, आर यू नो वेरी वेल? मोस्टली हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ही यूज करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए. बट एक बात ध्यान रखना, व्हेन वी यूज गूगल क्रोम एंड सर्च एनीथिंग अबाउट व्हाटएवर यू वांट ऑन द एनी पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब सर्वर, सो वहां पर एक नीचे जब हम उसको क्लिक करते हैं ना, वहां पर एक चेकबॉक्स ऑलरेडी चेक होता है, उस पर लिखा होता है वी आर एबल to share your information. We are able to share your information to another subsidiary. Subsidiary जो वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम के, उनको वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है. क्या आपको ये बात पता थी? सडनली आपने देखा होगा कि आपसे कोई मैसेज आते हैं अलग अलग, जैसे फ्लिपकार्ट की तरफ से मैसेज आएगा, आपने कोई शॉपिंग नहीं की फ्लिपकार्ट से, पर आपके पास एक मैसेज आ जाता है ना हसबा, राज, शिवान, समझ रहे ना मेरी बात? वो मैसेज कैसे आता है? क्योंकि आपने उसको अलाउ किया गूगल क्रोम को कि आप अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी, कोई भी सब्सिडरी वेबसाइट, कोई भी सब्सिडरी वेब, हाँ बिल्कुल, दैट्स अ गुड एनफ आंसर इनसाइड द हसबा. ओके, क्योंकि वो हमसे टर्म्स एंड कंडीशन मांगता है ना, हम कुछ पढ़ते हैं. आर यू रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन? टर्म्स एंड कंडीशन, हाउ कुड बी पॉसिबल टू रीड आउट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन? सो बाय सिक्योर योर टाइम, जस्ट चेक आउट दिस टर्म्स एंड कंडीशन एंड से एग्री. उन टर्म्स एंड कंडीशन से हम एग्री हो जाते हैं, और जब आपने खुद एग्री किया है तो वो गूगल क्रोम आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है सब्सिडरी वेबसाइट के साथ. क्लियर? तो उससे बचने के लिए आपको एक डू नॉट ट्रैक को इनेबल करना होगा. मींस उससे हमें बचना होगा, उसको डिसएग्री करना होगा. ठीक है, उन टर्म्स एंड कंडीशन को हमें पढ़ना होगा. जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे अगेंस्ट है, जिससे हमारा डेटा लॉस हो सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन स्टील हो सकती है, उसको आप डिसेबल करते हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर योर वेब ब्राउजर कैशे एंड कुकीज. क्लियर योर वेब ब्राउजर कैशे एंड कुकीज. Any web browser apart from Google, so any other web browser are also have your browsing history. Are you know about the browser history? Simply a smartphone you can clear day by day. Clear day by day आप पढ़ते होंगे. हाँ, यस बिल्कुल आता है ना. तो आपको रेगुलरली अपनी ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करते रहना होगा. Why? Because any third person or any illegal person or called hacker, some like called hacker, okay? Hacker track your current activity, whatever you act, whatever you search, whatever you visit, what kind of websites, कौन सी वेबसाइट आपने विजिट की हैं. और आपने विजिट की हुई वेबसाइट में एक बात ध्यान रखना, आप वेबसाइट विजिट तो सिंपली आप फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग की है, आपने उसमें पिन नंबर भी दिया होगा, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा, व्हाटएवर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी और आपने हिस्ट्री में है सारी चीजें. तो ट्रैकर जो होता है, जो हैकर होता है, वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पर, सॉरी एग्जैक्ट जो एक्टिविटी है वो पता कर लेता है. और वहां पर कुकीज क्या होता है? कुकीज आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं. कुकीज ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें आपका डेटा, जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, उसकी एक ट्रू कॉपी बना करके रखता है. कुकीज सिंपली अ फाइल, योर करंट एक्टिविटी. नेक्स्ट, टर्न ऑन प्राइवेट ब्राउजिंग. प्राइवेट ब्राउजिंग को टर्न ऑन करके रखिए. प्राइवेट ब्राउजिंग को टर्न ऑन करके रखना है. प्राइवेट ब्राउजिंग सिक्योर योर ब्राउजर हिस्ट्री एंड कुकीज. अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो प्राइवेट ब्राउजिंग हेल्प्स अस टू सिक्योर योर ब्राउजर हिस्ट्री. इफ योर प्राइवेट ब्राउजिंग इज टर्न ऑन, देयर इज नो हिस्ट्री अवेलेबल इन हिस्ट्री कैसे, and there is no any types of cookies available in your cookies section. And next important, netiquettes is use of VPN, virtual private network. This is a much better option to browse safely. Virtual private network is a type of security. If you use VPN, all the information shared between you and a person from which you want to share your information is totally secured packet. एक secure packet के through जाएगा. जो भी आप इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, सेंड करेंगे, उस पर एक सिक्योर लेयर बन जाएगी और इस सिक्योर लेयर के अंदर थ्रू वो आपका इन्फॉर्मेशन जाएगा. यानी कि इंक्रिप्टेड कर देगा आपको, आपकी जो डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन, उसको इंक्रिप्टेड कर देगा, जिससे कि थर्ड पर्सन उसको ट्रैक नहीं कर सकता. ओके, सो मैं चलता हूँ अपने गूगल क्रोम पर. ये मेरा गूगल क्रोम है, शो हो रहा है सब कुछ. ओके, चलिए, ये व्हाट्सएप है, ये मेरे कुछ, मैंने अभी सब कुछ ये ऑन करके रखा हुआ है. अभी मैं इनकी हिस्ट्री दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक ओवर द हिस्ट्री दीज 3 वेबसाइट विजिट्स करंटली. ओके, हाउ कुड बी चेक? ओके, देखिए, क्लिक ऑन हियर these 3 dots एंड गो टू हिस्ट्री. यस राज, हाँ कुछ कह रहे हैं राज? स्क्रीन शेयर नहीं, अच्छा, ओके, अभी वो हो जाएगा.
एनफ? Yes, sir. Yes, sir. अभी शो हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. सो हियर क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स एंड इसको कर लेते हैं 3 डॉट्स एंड गो टू हिस्ट्री एंड हियर. ओके, दीज आर द हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री, क्या क्या मैंने आप किया. देखिए मैंने गूगल मीट चलाया इस पर. ओके, मैंने साइन इन किया है, ये 2 बार मैंने गूगल मीट को यहाँ पर लॉगिन किया है. क्लियर. मैंने कुछ सेटिंग भी यूज़ की है इसमें. VPN कनेक्शन भी मैंने इसे बनाने की कोशिश की है. मैंने कुछ सर्च किया है, पांडा सिक्योरिटी से रिलेटेड, रिसेंटली क्लोज, ये सब मैंने काम, ये सब कुछ हिस्ट्री में आकर के स्टोर हो रहा है. क्लियर. यानी कि वट एवर यू सर्च आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ब्राउजर, ऑल योर एक्टिविटी विल बी सेव्ड इन हिस्ट्री सेक्शन. ओके, दैट्स क्लियर राज? Yes, sir. Yes, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आउट इज कि हम इसको क्लियर कैसे करेंगे. हाउ क्लियर योर ब्राउजर, कैसे एंड कुकीज. ब्राउजर कैसे एंड कुकीज को क्लियर करने के लिए हमें जाना होगा अगेन इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे एंड गो टू, किधर गया, मोर टूल्स. गो टू मोर टूल्स एंड देन क्लिक ऑन क्लियर ब्राउजिंग डेटा. ओके, क्लियर ब्राउजिंग डेटा. Such kind of message or dialog box will appear in this section. The first section is time range last hour. इसका मतलब है कि लास्ट 1 आवर्स, बिफोर लास्ट 1 आवर्स आपने जो जो एक्टिविटी की है उसको रिमूव करना चाहते हो. लास्ट 24 आवर्स यानी पिछले 24 आवर्स में जो भी काम आपने किया है, जो भी हिस्ट्री है, जो भी वेबसाइट सर्च की जो भी आपने काम किया है, सभी रिमूव क्लियर करना चाहते हो. लास्ट 7 डेज का करना चाहते हो, लास्ट 4 वीक का करना चाहते हो, या ऑल टाइम आपने जिसमें अभी तक, जब से आपने सिस्टम को परचेज किया है, जब से भी आपने जो भी काम किया है, जो भी हिस्ट्री है, इसमें सबको रिमूव करना चाहते हो. वट एवर यू वांट, आप कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो. ओके, अब यहाँ से आप ब्राउजिंग हिस्ट्री, केवल ब्राउजिंग हिस्ट्री रिमूव करना चाहते हो. इफ यू वांट टू रिमूव क्लियर ओनली ब्राउजिंग हिस्ट्री, दैट चेक इट एंड अनचेक ऑल दैट ऑप्शंस. If you want to erase only cookies and other site, तो only check this, another unchecked you want. और कैसे इमेज एंड फाइल्स अगर आपको रिमूव करनी, वट एवर यू वांट, अगर आप तीनों को रिमूव करना चाहते हैं तो तीनों को चेक कर दीजिए, और अगर कोई सिंगल वन आप यूज करना चाहते हैं तो सिंगल वन आप इसमें यूज कर सकते हैं. डजंट मैटर. एंड देन क्लिक ऑन क्लियर डेटा. क्लियर डेटा योर चेक नाउ, चेक कर सकते हैं यहाँ से. ये देखिए अब सब कुछ आपका अपडेट हो रहा है. एक्सटेंशन, डिवाइस सॉफ्टवेयर, सेफ ब्राउजिंग, पासवर्ड, ये सब कुछ आपका एक्सटेंशन भी रिमूव हो चुका है. सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है. अब आप कोई भी हैकर आपके एक्टिविटी को ट्रेस नहीं कर सकता. ठीक है, क्लियर है. अगेन चेक करते हैं हिस्ट्री में कुछ आ रहा है क्या. आ रहा है ना, क्योंकि अदर अकाउंट से लॉगिन है. तो इस तरह से हम यहाँ पर शो करेगा, लेकिन आपकी जो कैसे है, कैसे से वो चीज़ रिमूव हो चुकी है फाइनली. नेक्स्ट वन, टर्न ऑन प्राइवेट ब्राउजिंग. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. और अभी कुछ बच्चों को ये पता चलेगा तो आप कहेंगे कि वाह, ये भी ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब कि हम प्राइवेटली कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं. प्राइवेट ब्राउजिंग ओपन करने के लिए सिंपली हमें अगेन क्लिक ऑन दैट 3 डॉट्स एंड क्लिक ऑन न्यू इनकॉग्निटो विंडो. न्यू इनकॉग्निटो विंडो, दिस इज योर प्राइवेट ब्राउजिंग. क्लियर. कभी यूज किया आपने इसको, इनकॉग्निटो मोड को? yes, sir. Yes, आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली एंड अदर पीपल हु यूज दिस डिवाइस वांट टू सी योर एक्टिविटी. अभी मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करके मैं अपने सिस्टम को शट डाउन कर दूं और नेक्स्ट कोई अदर पर्सन आता है और आने के बाद मेरा ब्राउजर ओपन करके वो चेक करना चाहता है, हिस्ट्री में जाकर वो चेक कर सकता है. हिस्ट्री में जाकर के वो चेक कर सकता है कि इसने क्या क्या काम किया है. तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शन नहीं आ रहा पहली बात तो. ठीक है, तो उसे हिस्ट्री में कुछ नहीं मिलेगा. बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना, कुछ दुश्मन भी होते हैं बराबर में, बगल में, एक फील्ड में, एक कैरियर फील्ड में. ऐसा होता है कि हमारा जो साथी, हमारा जो कलीग है, वो हो सकता है हमारे साथ कोई चीट कर दे. आस्तीन का सांप, वी कैन से सिंपली आस्तीन का सांप. तो इसलिए हमें ये चीज़ ज़रूरी है. वट एवर इसका मिसयूज, बहुत सारी IT एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसका मिसयूज ज़्यादा किया जाता है ना. बट मिसयूजिंग की तरफ क्यों देखें हम उसका जो बेटरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ना, उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं. तो सिक्योरिटी के लिए यूज़ कीजिए. क्लियर ना. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो भी कुछ आप सर्च करेंगे सब कुछ प्राइवेटली आपका सर्च होगा. क्लियर. इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. ये अलग नेक्स्ट विंडो होती है, देखिए इसमें उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है. नेक्स्ट थिंग, यूज अ VPN कनेक्शन. तो VPN कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर जो है पूरे स्टेप्स लिख दिए हैं. इसको आप जो है पढ़ लेंगे. मैं जल्दी से इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ VPN को कैसे हम कनेक्ट करेंगे. क्लियर. VPN कैसे क्रिएट करेंगे. स्टार्ट बटन पर जाएंगे और सिंपली हमें जाना है सेटिंग पर. सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड क्लिक ऑन VPN. ऐड अ कनेक्शन. यहाँ पे अपने कनेक्शन का नाम और विंडोज बिल्ट इन रखेंगे. कनेक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं. जैसे मैंने लिखा, मैं राज के नाम से बनाता हूँ. आज राज पहली बार आए, राज के नाम से कनेक्शन बनाता हूँ. मैंने सर्वर दे दिया गूगल, सर्वर का नेम आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं www.google.com. ओके, ये मैंने सर्वर का नेम दे दिया. देखिए कुछ गलत बता रहा है, क्या कह रहा है. ओके, कैश फ्लो कौन हो रहा है, एक मिनट. ओहो,
ये मैंने सेलेक्ट किया, राज हो गया, ये हो गया। अब क्लियर देखो, ये जो यहाँ पे ब्लैंक अगर छोड़ दोगे ना तो आपका ये हाइड नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ सर्वर का नेम दे दिया जिससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा सर्वर भी आप दे सकते हैं, कोई प्राइवेट सर्वर है तो इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे। अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी देना चाहते कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शनल है। पासवर्ड अगर देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक रखने देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शनल है। इसके बाद सेव कर दीजिए। देखिए अब राज नाम से कनेक्शन बन गया है, राज नाम से कनेक्ट, एक नया VPN कनेक्शन हो गया है। अब जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे इस कनेक्शन को आप एक्टिव कर लेंगे। हाउ कैन एक्टिव दिस VPN कनेक्शन? क्लिक ऑन, यहाँ पर जब वाईफाई में जाएंगे जो भी कनेक्शन आपने बनाया यहाँ पर आपका वो बन जाएगा। क्लियर, सिंपली क्लिक ऑन कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से यूजर नेम साइन इन करने के लिए बोलेगा। साइन इन आप किससे करेंगे? जो भी आपकी यूजर आईडी है जिससे भी आपने ब्राउजर को लॉगिन कराना है वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे और देने के बाद ओके कर देंगे, ये आपका कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा। प्राइवेट इसका मतलब जो भी कुछ आप सर्च करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे, सब कुछ आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। क्लियर?